Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. Today in this video our topic is non-finite verbs. Non-finite verbs. In previous videos we did what is finite verb and what is non-finite verb. And in one more video we did types of finite verbs, that is transitive and intransitive. And in this video we will do non-finite verbs. What is non-finite verb? In previous video also I discussed what is non-finite verb, but now also I will explain again non-finite verb. What is non-finite verb? Non-finite verb is not change according to the tense, according to the number and according to the person of a subject. It doesn't change. What change? According to tense. Tense के according change नहीं होती है, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है. इट मीन्स ये हमारी मेन वर्ब नहीं है. इफ़ इट इज़ मेन वर्ब देन इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड नंबर एंड पर्सन. सो इट इज़ नॉट मेन वर्ब. इफ़ इट इज़ नॉट मेन वर्ब देन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट? इस वर्ब का फंक्शन क्या है? अगर ये मेन वर्ब का काम नहीं करती है देन इट वर्क्स एज, कैसे वर्क करती है? एज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब एंड नाउन. इट वर्क्स एज नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. इट मीन्स इट विल वर्क एज नाउन, इट विल वर्क एज एडजेक्टिव. ये नाउन मीन्स इट विल वर्क एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. एडजेक्टिव इट मीन्स इट विल क्वालिफाई नाउन को एक्सप्लेन करेगी. एंड इट विल क्वालिफाई verb, it means adverb. So non-finite verb. How many parts we divide? We will divide in 3 parts to non-finite verbs. First one is infinitives. Second one is gerund. Third one is participles. What is infinitive? And in this video we will fully explain what is infinitive, how to form infinitive. infinitive कैसे बनता है? verb नहीं है, main नहीं है. what is the formation of infinitive? what we will do, we will take to plus base form of a verb. Any verb we will take base form of that verb and we will plus 2 plus that base form. That means that is our infinitive. It means if our verb is eat, it means to eat, to play. She likes to read storybooks. She is our subject, likes is our main verb. And to read, what is to read? To read is our infinitive. It is not our main verb and it is 2 plus V1. So it is our infinitive. Now one more thing what we will discuss, that infinitive work as noun, adjective and adverb. As a noun, adjective and adverb. As a noun, how to identify? It means noun works on the place of subject or object. या तो वो subject के place पे हमें noun मिलेगी या हमें object के place पे मिलेगा. Yes. Take as a subject. To dance was her passion. What is to dance? To dance is subject here. To dance is a subject here. Verb and a object. And to dance is subject here. But what is it? It is to plus first form of verb dance. It means it is infinitive. Infinitive as a subject. As object
Girls love to dance. Girls is our subject, love is our verb, and to dance is our object. And what is it? It is to plus first form. Then what it works? It works as a infinitive, as a object. Next one is as adjective. Both these are as a noun. Work as a noun. Subject and object, on the place of subject and on the place of object, works as a noun. Now as a adjective. That was a game to watch. That was a game. It is adjective of a noun to watch. So it works as a adjective, but what is it? To plus first form infinitive. As an adverb. We eat to live. We eat. And to live. Why to eat? क्यों खाते हैं हम? To live, जिंदा रहने के लिए. Then what is it? It is adverb. So infinitive, work as, what is the base form? To plus first form, work as noun, adjective and adverb in a sentence. It is not a main verb. Next one is as object of a preposition. We take example as an object, एक object के रूप में, but sometime you got such type of sentences and you will get in option as an object of preposition, as subject. Then you don't get confused. He stood up to ask a question. It is as an object, but object of preposition. Where is preposition? Here is a preposition. He stood up to ask a question. If preposition is before our object and object is to plus first form, that is infinitive, then it will be object of a preposition. Next one is some words, verbs of knowing and understanding. जिस verb से हम know means कुछ जानते हैं, कुछ understand करते हैं, then with that words we will use non-finite verbs. Know, think, consider and feel. अगर इस तरह से हमें ये verbs मिलती हैं सेंटेंस के अंदर, तो इन verbs के साथ हम क्या करेंगे? वहाँ हम ओनली नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वन इज बेयर इन्फिनेटिव. इट मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब. इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म. अप टू हेयर रूल इज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हमें यूज़ करना है. नाउ बेयर इन्फिनेटिव. What is infinitive? Infinitive to plus first form. But bare infinitive. Bare infinitive means bare. Bare means without that. Or without, what is without to? It means we will use only first form of the verb. We will not use a to. To. That is bare infinitive. Then these are the verbs. Some verbs. With that we will not use to. ये आपको लर्न कर लेना है इन वर्ब्स को. मोस्टली बहुत मीन्स 75% ये वर्ब्स हमें मिलती हैं कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए. बिड, बेयर, नीड, हियर, लेट, मेक, सी, वॉच एंड हाउ. अगर ये वर्ब हमारे पास है देन वी विल नॉट यूज़ विद all these verbs. We will not use to plus first form. We will use bare infinitive. It means we saw him leave. What is saw? Second form of see. Teacher made us. What is, where is make? Make at last. It means यहाँ पे हमारे पास कौन सी वर्ब है? see है और make है. saw and made second form of both these verbs. Then with
these verbs if live it means to live हमने यूज़ नहीं किया है यहाँ पे, अगर हम to live करेंगे यहाँ पे then it will be wrong. Then made us do the homework, not to do. Teacher made us do the homework. To do the homework हमें right लगता है sentence कि it is right sentence, but see observe here work is make and make doesn't take to plus a first form. It is take only first form, then it is right option. But sometime you will get to with these verbs. आपको टू भी मिलेगा इन वर्ब्स के साथ. आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन चीज़ों को लेकर कि मैम ने तो बताया था कि अगर हमारे पास ये वर्ब्स हैं, बिड है, बेयर है, नीड है, हियर है, हैव है, वॉच है, तो हमें टू यूज़ नहीं करना है. बाद में जो फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना है. बट यहाँ तो मैम ने टू लिख दिया है, बट है क्या, व्हाट इज़ इट? आप ये देखिए सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा है इफ पैसिव. हमने एक्टिव और पैसिव पढ़ा. एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव में पैसिव की जो फॉर्मेशन होती है मीन्स ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ही वॉज, अभी अगर ये टेंस के अकॉर्डिंग है, वॉज कहाँ यूज़ करते हैं हम? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. अगर हमारा अकॉर्डिंग टू टेंस अगर हमारा एक्टिव सेंटेंस होगा देन व्हाट वी विल डू, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा. बट यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं है. इट मीन्स ये हमारी नॉर्मल टेंस की फॉर्मेट नहीं है. इट मीन्स ये हमारा एक्टिव सेंटेंस नहीं है. इफ़ वॉज के साथ अगर हमने V3 को यूज़ किया है इट मीन्स हमारा ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है. एक्टिव से पैसिव बनाया है हमने. नाउ वॉज सीन, दिस वन इज ऑल्सो पैसिव सेंटेंस. तो मेरा यहाँ आपको बताने का मतलब है कि अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव में है और ये वर्ब्स हैं तो हम इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे, और अगर हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव में है तो हम टू के साथ यूज़ करेंगे. इफ पैसिव है तो इन सब वर्ब्स के साथ हम टू प्लस इनके साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे. तो आप यहाँ देख सकते हैं ही वॉज मेड टू रन एंड ही वॉज सीन टू लिव, और यहाँ पे मैंने सॉ और मेड के साथ बेयर इन्फिनिटिव यूज़ किया है और यहाँ पे इन्फिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन डिफरेंस. विद मॉडल्स वी विल यूज़ बेयर इन्फिनिटिव्स. विद मॉडल्स ऑल्सो वी विल यूज़ बेयर इन्फिनिटिव. इट मीन्स अगर हमारे पास सेंटेंस में मॉडल्स हैं, और ये रूल भी है, हम इन मॉडल्स की जो वीडियो हम करेंगे इस चैप्टर को जब करेंगे देन ओनली फर्स्ट फॉर्म टेक ऑलवेज मॉडल्स, और फर्स्ट फॉर्म जो है दैट इज़ बेयर इन्फिनिटिव. इट मीन्स अगर हमारे पास शैल, विल, शुड, वुड, कुड, कैन, मे, माइट, इस तरह से अगर मॉडल्स हैं हमारे पास सेंटेंस के अंदर, मॉडल का यूज़ करके हम सेंटेंस को बनाते हैं, देयर वी विल यूज़ ऑलवेज ए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. बट वन एक्सेप्शन है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी. एक मॉडल ऑक्सिलरीज में हमारे पास आते हैं डेयर एंड नीड. अगर डेयर एंड नीड एज ए मॉडल यूज़ हो रहे हैं, एक मॉडल के रूप में यूज़ हो रहा है. अब मॉडल यूज़ करते हैं, वी शुड गो, शुड के साथ मैंने गो को यूज़ किया है, ओनली बेयर इन्फिनिटिव को यूज़ किया है. देन हेयर ऑल्सो ये हमारा किसका काम कर रहा है, यहाँ पे ये मॉडल है. नीड भी हमारा यहाँ पे क्या है, मॉडल है. नेगेटिविटी एंड ये हमारी वर्ब है. देन इट इज़ बेयर इन्फिनिटिव. अगर हमारा ये मेन मॉडल का काम करता है. इफ़ सेकेंड थिंग को यहाँ आपको ध्यान से देखना है कि अगर यूज जो मेन वर्ब के रूप में अगर डेयर और नीड को हम मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे वर्ब जो होगी बाद में वो क्या होगी, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म. आप देखें एग्जाम्पल में देखें, ही डजंट डेयर. अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम क्या कर रहा है, डज कर रहा है. यहाँ पे जो मेन मॉडल वर्ब का काम कर रहा था वो क्या कर रहा है, डेयर. बट यहाँ पे डेयर जो है, यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो डू है, यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो डेयर है. ही डजंट डेयर टू डू,
ही डजंट। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी ये है, ये हमारी क्या है, मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब का काम कर रही है, अब यहाँ पे भी ये देखिए नीड जो है हमारी मेन वर्ब है, हमारी हेल्पिंग वर्ब तो क्या है, मॉडल वर्ब का काम जो कर रही है या हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है वो डू कर रहा है। अब यहाँ पे जो वर्ब है बाद में वो टू के साथ यूज हुई है, यहाँ पे भी क्या है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स कहने का मतलब है अगर वो मॉडल्स के रूप में है डेयर एंड नीड, देन ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड इफ डेयर एंड नीड यूज एज मेन वर्ब, मेन वर्ब का काम कर रही है सेंटेंस के अंदर, देन इट विल टेक टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स ये हमारा इन्फिनेटिव को लेगा, और अगर मॉडल है तो बेयर इन्फिनेटिव को लेगा। इट मीन्स नेक्स्ट वन इज कुछ वर्ड्स हमारे पास बट, एक्सेप्ट और देन। अगर हमने सेंटेंस में यूज़ किया और उसके बाद हम वर्ब को यूज़ कर रहे हैं, देन ये आपको बिल्कुल माइंड में क्लिक होना चाहिए कि बट है हमारे पास, एक्सेप्ट है एंड देन है। इसके बाद हमें सिर्फ बेयर इन्फिनेटिव को यूज़ करना है। शी डिड नथिंग बट। अब बट के बाद क्या है, ओनली फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे मैंने टू का यूज़ नहीं किया है। देन व्हाट इज़ इट, इट इज़ बेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट वन क्या है, कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, रादर देन है, वुड रादर है, हैड बेटर है एंड सूनर देन है। इट मीन्स टू हमारे पास देन के साथ हैं, ये देखिए रादर देन एंड सूनर देन, एंड वुड रादर, अब रादर यहाँ भी है, रादर एंड हैड बेटर। अब ये चार वर्ड्स हैं जो ग्रुप में हैं, कंपाउंड वर्ड्स हैं, इनको आपको लर्न करना है। क्या क्या है, रादर देन, वुड रादर, हैड बेटर एंड सूनर देन। अगर ये हमारे पास सेंटेंस के अंदर हैं तो वहाँ पे इनके साथ भी जो वर्ब बाद में यूज़ होगी, जो सेकंड वर्ब यूज़ होगी, जो मेन वर्ब के बाद जो सेकंड वर्ब यूज़ होगी वो हमारी बेयर इन्फिनेटिव होगी। यू हैड बेटर फिनिश, ये आपकी मेन वर्ब है। यूर वर्क, यू हैड बेटर फिनिश यूर वर्क सून। तो अब आप ये देखिए हैड बेटर के साथ हमने क्या यूज़ किया है, ओनली वर्ब को यूज़ किया है सेंटेंस के अंदर, यहाँ पे हमने टू को यूज़ नहीं किया है। तो इनके साथ हम क्या यूज़ नहीं करेंगे, टू। नाउ इन दिस वीडियो आपने क्या देखा इस वीडियो के अंदर कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर 3 पार्ट्स में यहाँ पे हमने इन्फिनेटिव को डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिया कि इन्फिनेटिव क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, उसकी फॉर्मेशंस कैसे बनती है, एंड बेयर इन्फिनेटिव क्या है और बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ हम कहाँ करते हैं, और सेम सिचुएशन में एक्सेप्शंस कहाँ हैं जहाँ हम करते भी हैं। देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू नॉन फाइनाइट्स, इन्फिनेटिव हम कर चुके हैं इसमें, वी हैव डन। नाउ वी विल डू नेक्स्ट वीडियो जेरेंड, एंड देन वी विल डू पार्टिसिपल। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल meet with the topic gerund. I hope you understood everything. Thank you. Have a nice day.